Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Yesterday we were discussing the topic that classification of matter. Classification of matter is divided on the basis of the constituents. It is divided into two parts. One is the pure substance and second one is the compounds. Pure substance we were discussed yesterday in detail. Pure substance is further classified into elements and compound. In that, elements were already discussed in yesterday's lecture. That is classification of matter part 2. Now today we will discuss the compounds and the mixtures. What is compound? Compound is a mixture of the constituents which are chemically combined, right? Chemically combined, for example, is table salt. Table salt is the chemical formula is for the table salt is NaCl that we are using in our home, right? Mixtures, the constituent substance are not chemically combined; they are physically combined, mixed physically. In there are major difference between compounds and mixtures are, first point is constituent. Constituents means from which elements, the elements which are present in the compounds, that is known as different elements that are present to form a compound is known as the constituents. Constituent atoms of the elements combine chemically. Example, NaCl. NaCl is nothing but a table salt that is used in our home daily. Table salt, right? Here Na is the sodium, Cl is the chlorine. Na is having the property that is highly reactive. It is a metal. Na is a metal. Cl, chlorine, is a non-metal. Both are combined chemically. Chemically means both are either sharing the electrons, and how they are combined chemically, that we will discuss in the second chapter. NaCl is chemically combined. Here Na is the metal, this is the metal, and this Cl is the non-metal. What are metal and non-metals? That we discuss, yes, in that we were discussed in the previous lecture. Now Na is having the property that it is highly reactive, while Cl is having the property that it is a toxic gas. But when they are combined chemically, they both lost their properties individually. So after combining it chemically, they do not retain their individual properties. That is the difference between compound and the mixture basically. Second point is constituent elements. Here the constituent elements are Na, that is sodium, Cl, that is chlorine. So constituent elements do not retain their individual properties in a compound. मतलब अगर chemically combine करने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके अंदर रिटेन नहीं रह पाती. इसी वजह से यहाँ पर मैंने अभी बताया कि Na जो सोडियम होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है. Cl जो होता है वो क्या होता है, एक टॉक्सिक गैस है. जब इनको केमिकली कंबाइन कर दिया तो इसने क्या कर दी, दोनों ने अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या कर दी, लूज कर दी. दैट्स व्हाई इट इज नाउ ईटेबल और इट इज सेफ टू ईट. ठीक. दैट Now, in case of mixture, the constituents retain their individual property in a mixture. For example, अगर मैं यहाँ example देखूं, physically हमें combine करना है, that is sugar in water. Sugar in water is a mixture, right? Water is a liquid that is tasteless, having no taste, right? Sugar is having sweetness, but after mixing the sugar and water, the both constituents retain their individual properties. Means sugar in water, if we dissolve some amount of sugar in water, then water that is liquid and having no taste, it is a colorless liquid. तो वाटर जो है अगर उसके अंदर जब हमने शुगर डिसॉल्व किया तो वो लिक्विड तो रहेगा ही रहेगा. शुगर की अपनी प्रॉपर्टीज जो है दैट इज स्वीटनेस, वो क्या आ जाएगी, वो भी उसके अंदर आ जाएगी. तो दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज मिक्सचर के अंदर रिटेन रहेंगी. ये है मिक्सचर. थर्ड डिफरेंस इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मेथड्स. केमिकल मेथड के द्वारा ही हम उसका सेपरेशन कर सकते हैं. दैट केमिकल मेथड्स वी विल डिस्कस लेटर ऑन.
Constituents can be separated by physical methods. Physical methods means, like if we take example in this sugar and water, how the sugar is separated from the water by the evaporation method. Evaporation is a physical method from which we can separate the sugar from the water, right? This is the example. Now these are homogeneous, compounds are homogeneous, and mixtures are either homogeneous and heterogeneous. What do you mean by homogeneous and heterogeneous? Mixtures or compounds are always homogeneous and heterogeneous if the constituents are present in the same amount throughout the substance, then that is homogeneous. अगर हमारे constituents जो हैं they are present in the equal amount, like if we talk about sugar and water, then ये तो नहीं है कि कहीं पर हमें पानी में मिठास जो है वो कम मिलेगी, कहीं पर पानी में ज्यादा मिठास मिलेगी, ऐसा नहीं है. ऑल ओवर जो पूरा हमारा गिलास है जिसके अंदर हमने शुगर को डिसॉल्व किया है उसमें क्या रहेगी, सेम स्वीटनेस रहेगी. तो दैट मिक्सचर इज अ होमोजीनियस. अगर मैं बात करती हूँ कि हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस जो है उसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अमाउंट जो है वो हर जगह जो है वो बराबर नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखती हूँ मडी वाटर, मडी वाटर के अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या होगा, हर जगह जो सैंड है दैट इज नॉट इक्वल इन द वाटर, सो दैट इज हेट्रोजीनियस. वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस होगा. या फिर दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने क्या किया, वाटर के अंदर थोड़ा सा ऑयल ड्रॉप जो है वो डाल दिया, उस केस में भी क्या होगा, हमारा हर जगह ऑयल जो है दैट इज नॉट इक्वल इन द वाटर, सो दैट इज नोन एज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. वो क्या कहलाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है. ठीक है. अब बात आती है एलिमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की. कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे क्या हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है एंड गैस भी हो सकता है. अब सॉलिड को सॉलिड के अंदर मिक्स करते हैं. एक कॉमन एग्जांपल घर के अंदर जो यूज होता है वो हम लेते हैं, दैट इज कि मैंने एक शुगर के अंदर थोड़ी सी चाय पत्ती को मिक्स किया. ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड सॉलिड कंपाउंड ले लो, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर ले लो. व्हाट इज दैट, अगर मैं चीनी के अंदर चाय पत्ती को मिक्स करूंगी, सिंपल सॉलिड फॉर्म में, नो लिक्विड इज यूज, इन दैट केस ये नहीं है कि टोटली मेरा इक्वल मिक्सचर क्रिएट होगा. मींस अगर मैं सेम अमाउंट लूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, सेम अमाउंट ऑफ अनदर एलिमेंट मिलेगा. तो उस केस में अगर हम डिस्कस करें तो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर जो होता है दैट इज ऑलवेज हेट्रोजीनियस. वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है. आप कोई भी एग्जांपल उठा के देख लो. नाउ अब बात करते हैं दूसरा, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर की. ठीक है, सॉलिड के साथ क्या हो सकता है, लिक्विड मिक्सचर हो सकता है. अब इसमें दो केसेस पॉसिबल हैं, आइदर सॉलिड इज डिसॉल्वेबल इन द लिक्विड, सॉलिड जो है वो क्या हो, लिक्विड के अंदर डिसॉल्वेबल हो. अगर सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्वेबल है then that mixture is the homogeneous mixture. If solid is not dissolvable in the liquid, in that case that mixture is the heterogeneous mixture. Second next is liquid liquid. लिक्विड के केस में भी हमारे पास दो चीजें हैं, आइदर बोथ द लिक्विड आर डिसॉल्वेबल. मींस अगर बात करें जैसे मिल्क के अंदर वाटर डाल दिया, मिल्क के अंदर अगर मैं वाटर डालूं तो वो क्या बन जाएगा, एक डिसॉल्वेबल मिक्सचर बन जाएगा. अगर लिक्विड, फर्स्ट लिक्विड और सेकेंड लिक्विड जो दोनों हैं वो आपस में कॉन्टिन्यूअसली मिक्स हो सकते हैं, देन दैट मिक्सचर इज नोन एज मिसिबल, देन दैट इज नोन एज मिसिबल लिक्विड. मिसिबल लिक्विड्स आर होमोजीनियस इन नेचर. वो क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं. अगर एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के अंदर डिसॉल्वेबल नहीं है, लाइक ऑयल इज अ लिक्विड, अनदर लिक्विड वी आर टेकिंग वाटर, या वाटर के अंदर हम ऑयल्स की ड्रॉप डालते हैं, ठीक है, या कोई भी ऑयल डालोगे तो वो क्या करेगा, मिक्स नहीं होगा. ठीक है, उस केस में क्या होगा, ऑयल जो है वो मेरा क्या रहेगा, आइदर उसकी डेंसिटी अगर वाटर से ज्यादा है तो वो क्या करेगा, ऊपर ही फ्लोट करेगा. अगर उसकी डेंसिटी वाटर से एक लिक्विड की डेंसिटी दूसरे लिक्विड से कम है तो वो क्या हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा. उस केस में दैट मिक्सचर इज नोन एज इमिसिबल लिक्विड्स. That is known as immiscible liquids. Immiscible liquids are heterogeneous in nature. ये किस में होते हैं, ये हमारे miscible liquids जो होते हैं they are homogeneous in nature, homogeneous in nature, and immiscible liquids are heterogeneous in nature.
Another one is, third type of mixture is gas into gas. गैस का गैस के अंदर, that is always homogeneous. वो क्या होगा? Always homogeneous होगा. जैसे solid solid mixture is always heterogeneous. Same cases with gas. Gas gas mixture is always homogeneous mixture. ठीक है. One more time I am repeating. Solid solid mixture is heterogeneous. Take the example of sugar and the tea. When you mix the sugar and the tea, it is not uniformly distributed throughout your substance. Therefore, it is a heterogeneous mixture. Second thing is solid and liquid mixture. If the solid is dissolvable in the liquid, then that mixture is homogeneous mixture. If solid is not dissolvable in the liquid, then that mixture is heterogeneous mixture. लिक्विड केस भी पॉसिबल है. इफ one liquid is mixed in the another liquid, take the example of milk and water. In that case, that liquid mixture is known as miscible liquids, and that is homogeneous. And another example is, if oil is mixed in the water, then that mixture is known as immiscible liquids, and immiscible liquids are heterogeneous in nature. And gas mixture is always homogeneous in nature. Now, what the next is, how we are separating the mixtures. In compounds are separated chemically. That is not included in the chapter 1. Now the method includes the separation of a mixture. How we separate from a mixture from another mixture. Separation of mixture. How the constituents of the mixtures are separated. In first case, solid, they are depending upon the physical constituents present in the separation of mixture is depending upon the properties of the constituent that are present in the mixtures, or depending upon the physical constituents. Like if the mixture is composed of solid and solid, in that case there are two things. One solid is sublimation. If one solid is sublimate, then in that case sublimation process is used. What is the sublimation process? When we heated one of the solid in solid mixture, when we heat it, one of the solid get converted into the gaseous state, and we collect that fumes by some means, and that process is known as sublimation. If one of the solid is attracted towards a magnet, then magnetic separation method is used. Suppose iron filling is mixed with sand. In that case, with the help of the magnet, we can separate the iron fillings from the sand. Right. Second is liquid. In liquid, one case is miscible liquids and another case is immiscible liquids. In case of miscible liquids, we can use the process like distillation, and in case of immiscible liquids, we can use the filtration process. For example, before that, one more method is there: solid into liquid. Solid and the liquid. If the solid is dissolvable in liquid, and second case is not dissolvable. If the solid is dissolvable, let we take the example of
solid sugar in the water. In that case, evaporation process may be used. If another process that we can use is distillation process. For this dissolvable process, we can use either the evaporation method or the distillation method. Distillation method you already studied in class 6, so that is not explained over here. Solid and liquid case not dissolvable, अगर dissolvable नहीं है, for example is sawdust in water. Sawdust in water, in that case filtration process is used. In that case filtration process is used. In filtration what we are doing, like नॉट डिजॉल्वेबल. एक सिंपल सा दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि पानी के अंदर मैंने चाय पत्ती मिलाई है. पानी के अंदर हमने चाय पत्ती मिलाई है, तो हाउ वी विल सेपरेट इट, कि पानी को चाय पत्ती से सेपरेट करने के लिए क्या करना है, एक छलनी का यूज करना है. तो हमारा क्या होगा, पानी और चाय पत्ती जो है वो बोथ क्या हो जाएंगे, हमारे सेपरेट हो जाएंगे. सिमिलरली अगर मैं सॉ डस्ट का एग्जांपल लेती हूँ, वाटर के अंदर वो क्या है, डिजोल्वेबल नहीं है. सॉ डस्ट क्या होता है, एक तरीके का जो हमारा ये लकड़ी का बुरादा वगैरह जो होता है उसको हम कहते हैं सॉ डस्ट. वो हमारा पानी के अंदर डिजोल्वेबल नहीं है. उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज करते हैं. फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, फिल्टर पेपर को यूज करेंगे. ठीक है, फिल्टर पेपर को या फिल्टर के लिए कुछ और चीज यूज करेंगे. तो जो लिक्विड चीज है जो हमारी छन्ने के बाद आएगी, दैट इज नोन एज फिल्ट्रेट. उसको क्या कहा जाता है, फिल्ट्रेट कहते हैं. फिल्ट्रेट इज द लिक्विड दैट कम्स आउट, क्लियर लिक्विड that is coming out, and the here second thing next जो उसके अंदर solid बच गया, that is known as residue. Here that is clear liquid or water in this particular case, sawdust case, right? Residue here is sawdust. Residue here is sawdust. ठीक है, ये प्रोसेस है हमारा सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर के लिए, कि हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो यूज करते हैं. दूसरा प्रोसेस हमारे पास क्या है, कि हम एक प्रोसेस था मेरे पास फिल्ट्रेशन का, इसी में जो सेकेंड प्रोसेस है जो नॉट डिसॉल्वेबल के लिए यूज किया जाता है, दैट इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. फर्स्ट प्रोसेस मैंने यहां बता दिया, दैट इज फिल्ट्रेशन. right, second process is sedimentation and decantation. Sedimentation and decantation. Sedimentation क्या है, कि सपोज हमने एक बीकर लिया, एक बीकर के अंदर वाटर है, इस मडी वाटर है. ठीक है, दिस इज हैविंग द मडी वाटर. लेट इट बी रेस्ट डाउन, मडी वाटर, लेट इट बी रेस्ट डाउन फॉर फ्यू आवर्स, फॉर फ्यू मिनट, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, कि मडी वाटर जो है वो मेरा कितना ज्यादा मडी है. तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर वो मैंने क्या सपोज करो एक गिलास के अंदर मैंने 2 चम्मच सैंड की मिला दी, तो उस केस में वो क्या है, मेरा कम वाटर है, कम मडी वाटर है. इन केस अगर मैं वो चीज कहीं बारिश के दिनों में कहीं पानी इकट्ठा हो रखा है उसको मैं लेके आऊं, या फिर हमारे गार्डन में जो पानी इकट्ठा हो गया है उसको हम लें, तो इन दैट केस दैट मडी वाटर इज वेरी मच हैविंग सैंड. सो उसको मेरे को लॉन्गर टाइम रखना पड़ेगा. अगर कम सैंड उसके अंदर है, दैट वी विल keep it for few minutes or few half an hour, that we can separate. After the after few hours, after few hours, let it be half an hour, तो क्या होगा, मडी वाटर के अंदर नीचे जो है सैंड, जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो मेरे क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे. दिस इज नथिंग बट sand. These are the heavy particles having the density higher than the water. They are settled down, and the clear water, this is the clear water. अब
सेटल डाउन वही पार्टिकल होगा जिसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, ठीक है। जिसकी डेंसिटी वाटर से कम है वो सेटल डाउन नहीं होगा। बट इन केस ऑफ मडी वाटर, अगर मैं इसको क्या, इस केस में हम क्या कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन भी यूज कर सकते हैं, डिकेंटेशन भी यूज होगा, साथ में फिल्ट्रेशन भी यूज कर सकते हैं। सपोज पानी जो मैंने गार्डन में से लिया उसमें क्या हो सकता है, घास के मेरे छोटे छोटे वो हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं, छोटे सूखी हुई घास के कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं, सैंड भी होगी उसके अंदर, स्टोन्स भी होंगे। सो जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, वाटर आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास कौन से आ जाएंगे, जो लाइटर पार्टिकल्स हैं। लाइटर पार्टिकल्स को मैं सेपरेट करने के लिए यूज कर सकती हूँ फिल्ट्रेशन प्रोसेस, उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन प्रोसेस से ये क्या हो जाएगा, मेरा पेपर के ऊपर, फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, इसको मैं दूसरे बीकर में ट्रांसफर करूंगी तो उसमें मेरा क्या आ जाएगा, क्लियर वाटर आ जाएगा, और नीचे जो इस बीकर में रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, सैंड रह जाएगा। दिस आफ्टर फ्यू आवर जो यहाँ पर ये मिक्सचर आया ग्लास के अंदर, दैट प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन। अब इस सेडिमेंटेशन प्रोसेस के अंदर हैवियर पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द वाटर, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको दूसरे बीकर में ट्रांसफर करते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज द डिकेंटेशन, कि हमने क्लियर वाटर को या जो एक लिक्विड है जिसमें हमारी डेंसिटी उसके पार्टिकल से कम है, तो उसको हम दूसरे बाउल में ट्रांसफर करेंगे। तो दूसरे बाउल में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, लेट इट बी बीकर ए, ये बीकर ए था, ये बीकर ए था, बीकर ए के अंदर मेरा यहां क्या रह गया, ये सैंड रह गया, दिस इज सैंड। आफ्टर ट्रांसफरिंग इन बीकर बी, इट कम्स आउट टू बी क्लियर वाटर। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिकेंटेशन कहा जाता है, ट्रांसफर को। और फिल्टर पेपर पर मेरे क्या आ जाएंगे, जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे। फिल्टर पेपर पर क्या आ जाएगा मेरे पास, जो लाइटर पार्टिकल्स रह गए, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन इज गोइंग साइड बाय साइड, वो हमारा दोनों प्रोसेस जो होते हैं वो क्या चलते हैं, बराबर चलते हैं। अब आता है लिक्विड और लिक्विड को सेपरेट करने के लिए। लिक्विड में या कलर्स जो हमारे लिक्विड होते हैं उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द पेपर क्रोमेटोग्राफी वी सेपरेट द लिक्विड, ठीक है। हम उसको क्या करते हैं, कलर्ड कंपोनेंट्स जो हैं, कलर्ड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर जो होता है उसको डिसॉल्व किया जाता है एक सॉल्वेंट के अंदर, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। एक पेपर है दैट इज फिल्टर पेपर, यू कैन से फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर को डिसॉल्व किया जाता है एक सॉल्वेंट के अंदर। ये मैंने लिया एक बीकर, यहां रॉड लिया, इसके ऊपर मैंने हैंग कर दिया फिल्टर पेपर को, दिस इज नथिंग बट अ फिल्टर पेपर, ठीक है। और यहां क्या है मेरे पास इसके अंदर, दिस इज सॉल्वेंट, ये क्या है, सॉल्वेंट, ये सम हैंगिंग रॉड, विद द हेल्प ऑफ हैंगिंग रॉड आई कैन हैंग अ फिल्टर पेपर इन द सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट के अंदर कौन कौन से कलर्ड कंपोनेंट प्रेजेंट है, वो क्या होगा, विद टाइम वाटर सॉल्वेंट के साथ जो है वो ट्रेवल करेंगे अपवर्ड। हर एक सॉल्वेंट, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की क्या होती है, अपनी एक एफिनिटी होती है कि वो कितना जो है वो ट्रेवल कर सकता है, वो हमारा इस पेपर के ऊपर आएगा। सपोज यहां पर आता है मेरे पास रेड कलर, एफिनिटी जो होती है वो लाइक दिस होती है कि ये जो फिल्टर पेपर था ये रेड है, ठीक है। हर एक कलर की अपनी अपनी एफिनिटी है, ठीक है, कि वो कितना ट्रेवल कर सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द एफिनिटी हाउ मच ए कलर्ड इज ट्रेवल, वी कैन फाइंड आउट दैट विच component is present in this
कलर्ड कंपोनेंट मिक्सचर। कलर्ड कंपोनेंट के अंदर हमारा कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है वो डिपेंड करेगा, वो हम कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पेपर, फिल्टर पेपर के ऊपर कहाँ कहाँ हमारे पास जो है वो मार्क आए हैं, उसके बेसिस पर हम फाइंड आउट किया कर सकते हैं कि कलर्ड कंपोनेंट के अंदर हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स जो थे, कलर्ड कंपोनेंट मिक्सचर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स जो थे वो प्रेजेंट थे। That is the paper chromatography. Paper chromatography. Only the introduction of paper chromatography is there in the syllabus, but in detail we will discuss it in for the lecture of class 8. This is all about the classification of matter. What we were studied till now is how the classification is made depending upon the atoms present in the substance, like solid, liquid, gas, and one more fourth state is there, that is plasma. Depending upon the constituent present in the constituent presents, on that basis we will discuss it, pure elements and mixtures. Pure elements are further classified into two: elements and compounds, and we were discussed in detail how the elements are classified, what are the three types of elements are there, difference between them, what is the difference between compound and mixture. This is all how the mixture are separated from one another. A mixture may contain solid solid, solid liquid, liquid liquid, or gas and gas. ठीक है, this is all about the chapter classification of matter. If you have any doubt, please either post in the comment box or you can mail me via the email mentioned on the YouTube channel. Please like and subscribe the video to get the notification of the videos. Thank you.